Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. I'm with Suraj Yengde, very well-known Dalit writer, activist, who's written this lovely book called Caste Matters. Here you can see it on the screen. Right now, a fellow at the Harvard Kennedy School in Boston, and Dr. Kaushal Pawar, a Dalit teacher, a professor at Motilal Nehru College. And what is so interesting about her is that she teaches Sanskrit. So welcome to the both of you to the print, to this debate called the Print Debates, where we discuss the most burning issue of the day and what more difficult and traumatic these days, but the subject of the gang rape, or the alleged gang rape, shall I say, of a young Dalit girl, barely 20 years old, in Hathras in Uttar Pradesh. A lot of action around that, including political action. But first of all, welcome to you both, Suraj and Dr. Kaushal. Thank you, Jyoti. So my first question to you, Suraj, is that you're far away in the US. Both Dr. Kaushal and me are here in Delhi. You've probably heard of the alleged gang rape of this young girl and by upper caste men. Today's news is that there was no sexual assault, there was no sexual violence, allegedly according to the autopsy report of the hospital. Your first comments on this? This news came to me, Jyoti, on my social media, the whole morning I was sick, sudden fever, and I couldn't understand. And, surprisingly, Boston is warm outside. And I was taking a pill to, tone down my cold and feverish, because the news is so gory, and it happens always. It happened when Rohit Vemula happened. It continues to happen with Muthu, Krishnan, and various other gory atrocities that continue to be committed upon my community. And now, what we need is justice, but we also need beyond justice. We need to have strict mechanism that doesn't give rise to such kind of atrocities. I should say that the apathy by the state government and as well as the center has really came to the front to show us that this Dalit, who are Hindus, don't really matter to the Hindus, to our people, because for them they're still untouchables. They're still the lowest bodies that can be consumed, abused, exploited, and then killed. Her spine broken, strangulated, and the mother who is the first witness to that, she's explaining all of this, and this state government has the audacity to tell that the mother is lying about her daughter. Which mother would continue to lie about such nasty incident to the world? And this is where we are now. This is a very patriarchal, Brahminical government who believes in the age-old customs that should have been done by now and tend to reproduce to shelter their own caste men. Dr. Kaushal, आपकी राय में जो इस बेचारी लड़की के साथ जो हुआ है, आज की तारीख में ये बताया जा रहा है कि उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। ये ज़रूर एडमिट कर रही है यूपी सरकार कि उसको जो है स्ट्रैंगुलेट, यानी उसका गला दबाया गया या घोटा गया, और उस वजह से जो है उसकी स्पाइनल कॉर्ड पे फ्रैक्चर्स आए हैं या इंजरीज आए हैं, और उस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा समझने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप ये बताइए कि रीजन क्या है, फिर मारपीट क्यों? एक लड़की घास लेने गई हुई है, रास्ते में उसको 4 लड़के मिलते हैं अपर कास्ट के, गांव के ही लड़के हैं, जिस गांव की लड़की है वो उसके साथ मारपीट करते हैं। क्यों? क्वेश्चन तो यहाँ है ना, क्यों मारपीट की गई? जो आज एडीजी जो बयान दे रहे हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं, ये पहले से संभावित था। एज बीइंग ए दलित एक्टिविस्ट, हमें पहले से ही ये जानकारी थी कि अब ये होगा, बिकॉज रात को
उसका डेड बॉडी का अंतिम संस्कार एक तरह से कर दिया गया। जी बिल्कुल, किसी को ना बताए, ना परिवार को बताए, ना किसी को दिल्ली बताए। से शिफ्ट किया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है पूरे ब्यूरोक्रेट्स पे, पूरे यूपी गवर्नमेंट पे। ऐसी क्या वजह थी? अगर मान लीजिए मारपीट हुई थी तो आपने मारपीट का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? फिर आपने, अगर मारपीट हुई थी तो उसका रीजन क्या था? आप 14 दिन तक आप कर क्या रहे थे? 14 तारीख की घटना है, 28 तारीख को 3 बजे लड़की की डेथ होती है। इस पूरे पीरियड के दौरान यूपी गवर्नमेंट कहाँ थी जो ये बयान ना दे सकी कि उसका रेप नहीं हुआ? मतलब ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के ऊपर, पूरे भारतीय समाज के ऊपर जो अपने आप को विश्व गुरु बनाने का ढिंढोरा पीटते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर इस तरीके से हद है अमानवता की, इतनी पूरी तरह से रेप करने के बावजूद, उसको मारने के बाद उसकी जीभ काट दी गई, हड्डियां तोड़ दी, उसके बाद उसको शिफ्ट नहीं करने दिया गया, वहीं पे अलीगढ़ हॉस्पिटल में बिना किसी सुविधाओं को ट्रीटमेंट, एक ड्रामाबाजी करते रहे, और जब थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप पड़ा तो सफदरजंग हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो आप दोनों मुझे ये बताएं, सूरज, अगर आपकी तरफ में, अगर आपको मैं पूछ सकती हूँ कि ये जो अभी जो कौशल बता रही है कि किस तरीके से इस बेचारी लड़की के ऊपर जो पड़ी है, जो हुई है, तो ये सिर्फ, क्या ये जानबूझ के सिर्फ दलित लड़कियों के साथ हो रहा है, या आम जो है लड़कियां हमारी हिंदुस्तान के अंदर जिनकी बिल्कुल एक सेकंड रेट सिटीजनशिप के जो हम बताते हैं, सो इज इट that there is a difference between violence against Dalit women or violence against all women? I think we cannot differentiate that, because violence against every woman takes place in such exponential amount. जो जिसके साथ बलात्कार होता है वो तो औरत जात है, पर जब इसकी हम निगरानी करते हैं तो उसमें हमको ये दिखता है कि अप्रोक्सीमेटली जो दलित महिला है, जिसकी परसेंटेज अगर हम देखें तो तकरीबन 8% है वो भारत की जनसंख्या की। 8% जनसंख्या होने के बावजूद भी उसके ऊपर अभी जो 2019 का डेटा बाहर आया है, दर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ जबरन की जाती है, रेप किया जाता है। और ये तो है रिपोर्टेड केसेस। अब अगर हम एक प्रोटोटाइप एग्जांपल लें तो दिखता है कि केस दर्ज होने में ही इतना गोरी इंसिडेंट हुआ है, इतना भयंकर उसके साथ अत्याचार हुआ है, फिर भी वो केस दर्ज नहीं होती। तो ये जो दर्ज केस हुई है, इसका मतलब पुलिस प्रशासन ने एक्सेप्ट किया है और उसके साथ साथ वहां की जुडिशियल अथॉरिटी ने भी उसके साथ कोऑपरेट किया। ये है बड़ा एक्सेप्शनल केस दलित वुमेन के रेप का। उसी हिसाब से भारत की जो महिला है, अगर नॉन दलित को देखे और दलित महिलाओं को देखे तो तकरीबन 50% भारत की जनसंख्या है, विच इज इक्विवेलेंट, विच इज मोर देन अबाउट 650 मिलियन, 65 करोड़ जनसंख्या जिनकी है। उनके साथ 88 रेप्स हर दिन होता है आम औरतों के साथ, जो हर जाति की हो। और जो अब हम इसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमारे सामने एक तरह का एक मैं कहता हूं ह्यूमिलिएशन है, जो खुद को, मैं तो ये स्पेशल, मैं इसका जो टारगेट है मैं पुरुषों को देता हूं, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है, हम केवल रेप ही इंसिडेंट को कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पर जी। जो एवरीडे सेक्सुअल अब्यूज होता है, जो लैंगिक आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो औरतों का जीना मुश्किल कर देते हैं, जो उनके ऊपर टॉन्ट होती है, पूरा स्ट्रक्चर जो है पुरुष सत्ता का, वो तुम्हारे ऊपर पूरा लाद दिया जाता है। और यही तो है जाति व्यवस्था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में जब इसका डायग्नोसिस किया था यहाँ पर न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने यही बताया था कि स्त्रियों के हनन और दमन पर ही जाति व्यवस्था टिकी है, फिर वो कोई भी जाति की स्त्री हो। और अगर वैसे डॉक्टर कौशल पवार खुद एक संस्कृत की अध्यापिका और खुद रिसर्चर है, वो उसके बारे में, वेदों के बारे में ज्यादा जानती हैं। पर जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो इसको हम ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल फेज में भी मैं मनुस्मृति पढ़ रहा था,
जो है सवर्ण जाति के औरतों का भी दमन किया है। तो यह नहीं समझ में आता कि सवर्ण जाति की महिलाओं को अपने पुरुषों के साथ क्या इन्वेस्टमेंट है, जबकि पूरा स्ट्रक्चर ही उनको दबाने के ऊपर है। दे शुड फाइंड मोर एलाइज इन अदर ऑपरेस्ड ग्रुप, पर यह नहीं होता है क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म है इट ओवर पावर्स पेट्रियार्की। तो इसके लिए बाबा साहब का जो डायग्नोसिस है उसको हम इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर कौशल, ये बताइए कि जो दो बातें, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो ठाकुर जात को बिलोंग करते हैं। ये जो महिला जिसका अभी जो एलिजेड गैंग रेप हुआ और उसके बाद बेचारी जो खत्म हो गई, ये एक दलित लड़की थी, वाल्मीकि कास्ट को बिलोंग करती थी। तो आपको क्या लगता है कि यूपी के अंदर, खास करके आज की तारीख में, क्योंकि हम इस घटना की बात कर रहे हैं, कि एक ये अपर कास्ट लोअर कास्ट का क्या ये एक बहुत ही ये ऑब्वियस आपको एक लिंक लगता है कि क्या ये इज इट जस्ट कोइंसिडेंस कि ऐसे हुआ है? क्योंकि उसके परिवार वालों ने कहा है, इस लड़की के परिवार वालों ने कहा है कि अगर हम ठाकुर होते या ब्राह्मण होते तो हमारे साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होती। मैं डॉक्टर सूरज येंगड़े के बीच की बात में एक ऐड करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर साहब ने, बट एक छोटा सा अंतर तो आपको दिखाई देता है इसी इंसिडेंट में भी, और तमाम जितने रेप केसेस ले लीजिए आप, और न केवल रेप केसेस बल्कि दलित एट्रोसिटीज के जितने भी उदाहरण है, चाहे खैरलांजी हो, गोहाना कांड हो, दुलेना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, राजस्थान में इतने सारे कांड हुए, पूरे भारत के हिस्से का, इन सारे को देखते हुए एक साइकोलॉजी तो एकदम सीधा बनती है कि कास्ट मैटर काम करता है। और क्योंकि एक बराबरी का भाव आना शुरू हो चुका है बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के बाद, एक प्रोग्रेसिवनेस जो इस सोसाइटीज में SC ST OBC में जो देखने को मिल रही है, एक टकराव की स्थिति में अब है। टकराव कहाँ होता है? टकराव किस अपर और लोअर कास्ट का जो डोमिनेशन है, उसमें जो बराबरी का भाव जो एक आना शुरू हुआ है, खासकर गांव देहात में भी अब जो एक जो वो जमाने की, गुजरे जमाने की बात हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी कही जा सकती है कि अगर गांव की लड़की को अपर कास्ट का व्यक्ति बिल्कुल अपनी जागीर समझता है, तो वो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद एक चेक बैलेंस लगा था, जो इन प्रैक्टिस में अभी भी गांव देहात में नहीं है। लेकिन हम उनके मतलब पूरी चीजों को नकार के नहीं देख सकते। एक बदलाव आया है इस पूरे फ्रेमवर्क में, अगर देखें उस फ्रेमवर्क में जो बदलाव आया है, वो बदलाव बड़ा कारण है टकराहट का। आप ये देखिए, इसमें जो पेरेंट्स का जो बयान है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि अगर वो ठाकुर होते तो ये जो जिस तरीके का ब्रूटल, ये कोई केवल रेप नहीं है बल्कि रेप से भी कई गुना ज्यादा जघन्यतम अपराध है। निर्भया का केस जो चीख चीख के पूरी दुनिया ने उठा दिया था, क्या निर्भया के केस से कम है ये? आप ये बताइए, जो लड़की अपनी जीविका चलाने के लिए गांव देहात में काम कर रही है, निर्भया तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी रात को, इन दोनों को आप कैसे मिला के देख सकते हैं? क्यों नहीं हुआ? 14 दिन तक तमाशा देखता रहा भारतीय समाज का स्त्रीवादी आंदोलन। तमाम जातियां क्या इंतजार कर रही थी कि डेथ हो, तब हम डिबेट करें, तब हम चर्चा करें? क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि पूरी, तो आपको क्या लगता है? काम कर रहा है जी, बिल्कुल एकदम कास्ट एंगल काम करता है इसमें। ये डिसाइड किया जा रहा है अपने आप ही इंटरनली कि ये रेप केस किस कास्ट का है, ये रेप किस कास्ट का, न केवल अपर एंड लोअर कास्ट में, विद इन दलित भी ये काम करता है। क्योंकि जो सोशल हायरार्की हमारे यहाँ बन चुकी है वो सभी जगह। डॉक्टर सूरज ने एक बात कही थी बीच में कि महिलाओं का जो तमाम ग्रंथ है, महिलाओं को सारी महिलाएं बराबर है, शूद्र का दर्जा उनको दिया गया है, सारी महिलाओं को जो अधिकार है वो शूद्र के बराबर है। इसके बावजूद भी अपर कास्ट की महिला कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होती कि वो भी वंचित है, वो भी पीड़ित है, वो भी शोषित है। उनको भी उतने ही नकारा गया उनकी अस्मिता को जितना दूसरे दलित वंचित समाज को। उनका लेकिन जातीय अहंकार जो होता है, जातीय जो दमन होता है, जो अंदर से जो पेट्रियोटिक के अलावा भी जो जातीय जो एक बना हुआ है, वो तो उनके अंदर है। आप ये देखिए, बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती कि अगर किसी महिला के साथ असोल्ट होता है तो दलित समाज को चुप रहना चाहिए। बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। कोई भी महिला हो जिसके साथ इस तरीके से घटना होती है, हम निर्भया केस में भी उतने ही दुखी थे जितने आज है। इसलिए नहीं कि आज दलित महिला है, हम लोगों ने वहां भी लाठियां खाई थी,
जी, तो सूरज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ the questions that or the comments that Dr. Kaushal has just made, two or three very interesting comments. The first is that one of the reasons that for 14 days India kept quiet, or there was not such big protests as you saw in the case of Nirbhaya, was because she was a Dalit girl. Do you agree with that? Absolutely, there is no flinch of doubt on that, Jyoti. And in fact, I would, add my more strength to the sentiments of Dr. Kaushal Power. See, when Priyanka Reddy incident happened in Hyderabad, the entire nation was rooting for a street encounter. We did a Sharia type of punishment and we celebrated that. We don't see that outrage. And Dalits are invested in the human rights of everybody, irrespective of their caste, religion, class, or region. When it was a Nirbhaya case, when it was Priyanka Reddy case, or it was a case of any form of assault on anybody, Dalits have taken upon themselves, because they believe in the value of other human being, void of any of these artificial differences. But you don't see this reciprocated. It's absolutely because the humanity of Dalits surpasses the pygmy imaginations of casteist people, because people have not realized that caste has made them mentally inferior. What I mean by that is to not think themselves as a human can think of a human empathy, but they have gone to a certain beastly level by having an empathy to a selective discourse and apathy, and not extend that. And if your love is not extending to the most vulnerable, then your love is equal to violence. UP Chief Minister ka jo caste hai, do you think that things are much worse because he is of an upper caste and because this girl was a Dalit girl, and that's why it's so brutal? देखिए, जो यूपी की राजनीति है, या स्पेशली नॉर्थ इंडिया के स्पेसिफिक बेल्ट की, जो ठाकुर समाज है, विशेषतः राजपूतों की जो भी सब कास्ट है, उसके अंदर की विशेष सब कास्ट ही पॉलिटिकल डोमिनेंस में है. बाकी जो जातियां हैं उनको बस गांव देहातों में रखा गया है, उनकी जमीनों में वो काम करते हैं. तो उनकी जो रेज है, उनको बैलेंस करने के लिए आरएसएस ने बड़ा अच्छा गेम खेला कि इंस्टेड ऑफ प्रोमोटिंग अ ब्राह्मण, उन्होंने ठाकुर को यूपी में दिया, क्योंकि उनकी जो ग्राउंड फोर्स है, जो वायलेंस लाने वाली फोर्स है, वो इन्हीं जातियों से आती है. अब भारत की व्यवस्था में हर जाति को खुद के ऊपर प्राइड तब होता है जब दलित शोषित रहता है. अगर दलित शोषित नहीं है तो किस चीज का प्राइड करोगे फिर आप? आपके पास ना इंटेलिजेंस है, ना आपके पास डिग्रियां हैं, ना आपके पास ऐसा कोई मॉडर्निटी में जो प्रूव कर सके, वो कुछ नहीं है. और रही जमीनों की बात, और जहां से तुम्हारा अस्तित्व बनता था, जो तुम्हारे राजवाड़े थे, वो तो सब चले गए. जमीनें भी जा रही हैं, और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो एक्सेल नहीं कर पा रहे. हालांकि यहाँ जब देखते हैं कि गांव का एक दलित बच्चा पढ़ के कहीं ना कहीं प्रोफेसर बन जाता है, या कहीं ना छोटी मोटी नौकरी करने को देखता है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना चाहिए कि ये जो असॉल्ट है दलित के ऊपर का, वो पूरी समाज को बेइज्जती करने का है. और ये जो ठाकुरों की डेमोग्राफिक है, ये ऑल इंडिया नहीं है. इंडिया में सिर्फ 2 ग्रुप है जो पैन इंडिया है. एक है ब्राह्मण और दूसरा है दलित. ये तुमको ऑल इंडिया में देखते हैं, पर ये जो स्पेसिफिसिटी है ये बाकी जातियों की, फिर उसके अंदर अपर शूद्रा, जिसको मैं ओडीसी कहता हूं, अदर डोमिनेंट कास्ट, ये जो अनेक जातियां हैं जो सेम्बलेंस में जो ब्राह्मणिज्म फैलाने में इन्वेस्टेड है, इनको अपने इतिहास के बारे में ज्यादा मालूम नहीं. इन्होंने जो ब्राह्मण ने इनका इंटरप्रिटेशन किया, ब्राह्मणों ने जो इनको बताया, उसको फॉलो कर रहे. क्षत्रिय वर्ण से 3 महान व्यक्ति हमको उन्होंने दिए हैं. एक है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो खुद इस परंपरा से आए और उन्होंने ब्राह्मणवाद को ठुकराया. दूसरे थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने इस वर्ण के बाद आने के बावजूद भी उन्होंने इसको ठुकराया है. पर पता नहीं इनके पास राम ही क्यों हमेशा इनको दिखते हैं, कि राम की ही एक ब्राह्मणिक डिस्कोर्स फैलाते हैं. और हम सब जानते हैं कि राम के अनेक चरित्र हैं और अनेक इंटरप्रिटेशंस है. तो मुझको लगता है कि ये डिब्राह्मनाइजिंग का एक तरीका हो सकता है. और दलित्स आर एट द हेड, दे आर लीडिंग एन एंटी ब्राह्मणिक प्रोजेक्ट. तो वो उनसे डर है, बिकॉज एंटी ब्राह्मणिज्म इज टू डेमोक्रेटाइज, इज टू ब्रिंग इगैलिटेरियनिज्म इन ऑल आवर एथिक्स.
आप बताइए डॉक्टर कौशल, जो हम उस बेचारी लड़की के नाम की बात कर रहे थे, सबसे पहले तो और इंटरेस्टिंग, ये मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी, जो आप खुद जानती हैं, जो कि किसी भी इस तरीके से किसी भी लड़की का नाम लेना जो एक अलेज्ड गैंग रेप में अगर वो उसका वो आई हुई है, तो ये दिस इज अगेंस्ट द लॉ. डेफिनेटली आई एम एग्री विद यू, बट सबसे पहले मैं एक चीज ये बताना चाह रही हूँ कि जब ये 14 तारीख को घटना हुई, उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीजों तक फैले जी. अन्यथा अगर सोशल मीडिया ने इसको ना उठाया होता, ना बात की होती इसके ऊपर, ये बाहर आना ही नहीं था. आप ये देखिए ना कि मेन स्ट्रीम का मीडिया कब से जागे है, 2 दिन से, जब से डेथ हुई है जी. इससे पहले सोया हुआ था. और इसके बावजूद भी मैं आपकी इस बात को उससे जोड़ना चाहती हूँ. हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान है रिकॉर्डेड, उन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो पूरे यूपी में नुक्कड़ चौराहों पे उनके पोस्टर लगाए जाएंगे. तो 14 दिन की घटना चली गई, 14 दिन बीत गए, किसी को उनको पोस्टर नजर नहीं आया. कहीं किसी ने देखा है? नहीं देखा. आज भी इवन मेन स्ट्रीम का मीडिया जब बात कर रहा है तो केवल लड़की का नाम ले रहा है. कहीं आपने अभी तक भी एट प्रेजेंट अभी लाइव चल रहा है कई जगह पे, राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, उसके ऊपर पूरा मीडिया छाया हुआ है. कहीं पे भी उन लड़कों के नाम आपको दिखाई दिए हैं कि वो ठाकुर हैं और 4 लोग हैं? कहीं भी नहीं. क्यों? मानसिकता काम करती है. की बातचीत पे आते हैं, बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इस बात पे कि हमें एक तरह से नाम लेना किसी का भी XYZ का भी, ये गलत है. लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात उठ के आई, जैसे आप इसको ऐसे देखिए ना, दलित राष्ट्रपति, उससे पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए, कभी किसी ने कहा कि ये सवर्ण राष्ट्रपति है? घटना हुई मनीषा के साथ, अब कहा जा रहा है कि दलित लड़की के साथ हुई है. कोई ये कह रहा है कि भारत की बेटी के साथ ये घटना हुई है? एक भी नहीं कहता. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना. एक ऐसा डिस्कोर्स जो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से इसी जमात से उठा और उसने नाम लेके बाकायदा ये कहा कि की है और इनके साथ ये हुआ. उसकी वजह ये भी थी क्योंकि वहीं का सांसद भी है, उसी की कास्ट से आता है, बिल्कुल एकदम जिला भी वही है, सांसद वहीं का है, उनकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य है वो भी वहीं की है. तो वहां से शुरुआत हुई और नाम सामने आया. लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये तो ध्यान है, लेकिन हमें कहीं भी किसी भी विक्टिम का पोस्टर हमें नजर नहीं आ रहे, किसी को नाम तक नहीं पता. जी. तो आखिरी सवाल मैं आप दोनों को पूछना चाहूंगी. डॉक्टर येंगड़े, Baba Saheb Ambedkar was a political person and highly respected, of course, wrote our constitution, which is what gives us the strength to fight some of these evils in our society today. But my question to you is that you have acknowledged Dalit leaders like Behenji Mayawati. Now, she has made a statement today where she has demanded the resignation of the UP Chief Minister and says कि अगर ये भारत की बेटी नहीं है तो फिर कौन है? But she has not gone to the victim's family. वो उधर तक नहीं पहुंची है अभी तक हाथरस में. तो आप मुझे ये बताएं that why is it that Dalit politicians themselves do not take up this challenge and help in somewhat at least addressing it? I think this goes back to what Dr. Pawar was saying. Rather, she stated about the being the daughter of Mother India. Yeah. That means it's not only the onus on Dalits. My question is, why has not the rest of the political discourse has also stood by it? No, I agree with you. I agree with you. But when Behenji Mayawati and leaders like her, they, when they ask for votes, they talk about, we have a lot of categorization of votes, as you know, in India. They're seeking Dalit votes because they believe that these are. But when you have times of trouble like this, they do not come out enough and give support to the society. I have a slight different interpretation to that, Jyoti, simply because Dalit votes are not only for Dalit politician. Every political dispensation of whatever caste and whatever color need Dalit votes, and it's the genius of what we have. The post-Pune Pact outcome is we have to rely on reservation votes
in this political space. So agreed on the part that it's Dalit politician, but I don't want to single them out simply because it's not only the Dalit politicians who are asking for Dalit votes or Dalit spaces, it's every other dispensation. And the reason I don't want to single them out is simply because it's a question of ethics and morality. When will the dominant space, dominant class and caste space acknowledge their culpability in this and apologize or even demonstrate in that sense? You know, Chandrasekhar went, and of course Behenji's local team is in action. We don't know that because the media doesn't report on that, and it's the bastion of Behenji's political space. But I don't want to single her out simply because she is doing and her party men are doing beyond a tweet. But my thing is, where are the rest of India's politicians? I mean, of course, Congress is jumping into this because, you know, they are in the opposition and it will be, you know, bad. And by the way, the confidants of Rahul Gandhi, majority of them are Dalits who kind of, you know, prickle his social justice consciousness. But I also want to make a call for every, you know, human-loving, women rights believing person, irrespective of their political, you know, leanings. How are they going to reflect in this status and in this spaces? I think that's the kind of question I would like to, you know, rebut in response. Okay, Dr. Kaushal, you have the last word. Yes, बिल्कुल एकदम सही है. पूना पैक्ट में जब वोट पड़ता है तो उसको सभी जातियों का वोट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत एकदम क्लियर है. कास्ट प्रैक्टिस काम कर रही है यहाँ पर, क्योंकि बहन जी क्यों नहीं जाती हैं, क्यों नहीं दिखाई दी है सड़कों पे हाथरस? इसलिए मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू कन्वे योर क्वेश्चन ना. यही वजह है, कास्ट एंगल यहाँ पर भी काम करता है. मैंने बीच में आपकी बातचीत में कहा था कि कास्ट हायरार्की एक बनी हुई है. ये केवल अपर और लोअर कास्ट का मामला नहीं, ये विद इन दलित के अंदर भी जो डाइवर्जन है वो भी काम करता है. बहन जी के पास बहुत सारे ऐसे चांस हैं. अभी वो विपक्ष में है, विपक्ष में होते हुए उनके पास एक स्पेस है, मतलब वोट बैंक बनाने का. जी, विद इन कास्ट जो एक बिखराव जो एक नजर आ रहा है, बहन जी के पास टाइम है एकदम उस वोट बैंक को समेटने का, क्योंकि विद इन दलित जो एकदम खाई बनती जा रही है बहुत सारी चीजों को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर भी है, कल्चरल उसको भी लेकर है, रिलीजियस फैक्टर को लेकर भी है, सोशल मूवमेंट्स को लेकर भी है, भागीदारी का सवाल भी है विद इन दलित भी. हम अगर इसको बाईपास करके निकलते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बाबा साहब अम्बेडकर का जो इक्वालिटी का जस्टिस नहीं कर पा रहे. बहन जी क्यों नहीं जा रही, उसकी खास वजह है कि उसको ये पता है कि पूरे यूपी में वाल्मीकि वोट कितना प्रतिशत है. वोट इज गेमिंग ऑल दी पॉलिटिशियन ना. तो यही वजह है कि बहन जी का एक भी बयान अभी तक हाथरस में नहीं आया. आज आया है बयान, मैं उसी पे आ रही. आज आया है, लेकिन उसमें भी उसने योगी आदित्यनाथ की सिर्फ रेजिग्नेशन का मांग की है. वो एक पॉलिटिशियन टाइप बयान है, ना कि सोशल एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाने के लिए, या वाल्मीकि कम्युनिटी को कम से कम ये लगे कि जो काशीराम का जो पूरा आंदोलन है, जिसके साथ वाल्मीकि समाज कंधे से कंधा मिलाकर चला था एक वक्त पे, जो बिल्कुल एकदम कहें कि दीना भाना जैसे व्यक्ति जो खुद उसी कम्युनिटी से आते थे, वाल्मीकि कम्युनिटी से, जिन्होंने काशीराम को काशीराम बनाने में मदद की, वो कम्युनिटी जो एक तरह से धीरे धीरे उनसे पीछे हटती जा रही है. आज उनके पास स्पेस है उनको अपनी तरफ लेकर. क्या आप उनको दोषी ठहरा रही हैं? बिल्कुल एकदम दोषी ठहरा रही हूँ, कटघरे में खड़ा कर रही हूँ मैं मायावती को, क्योंकि कास्ट एंगल जिस तरीके से काम कर रहा है उनकी मानसिकता में, और उनका खुद का बयान ये दर्शाता है कि हाथरस पे एक भी शब्द ना बोलना और सीधा मुख्यमंत्री की मांग करना, ये राजनीतिक बयान है, ये न्याय की मांग नहीं है. ये के लिए, और आज जो हुआ आजमगढ़ में भी हुआ, लगातार 4 केस हो चुके हैं. महिलाओं की जिस तरीके से फिजिकल असॉल्ट लगातार हो रहा है, उसके ऊपर मायावती चुप रहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती. अगर बोलती हैं तो एक सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है. तो ये सबको समझ आ चुका है कि जिस तरीके से जिस तरीके से मायावती बैक डोर से उस फोर्सेस का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, जो सबसे बड़ा कारण है. जिस हिंदू धर्म की हम दुहाई देते हैं, उसी धर्म के अनुसार रात को उनको जला दिया गया.
और परिवार चिल्लाता रहा कि हम रात को अपनी मतलब बहन बेटी, आप हिंदू पूरे धर्मशास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो एक तरह से बजाय इस चीज का विरोध करने के, मायावती बिल्कुल राजनीतिक बयान दे रही, उसने कहीं भी, मायावती ने कहीं भी विरोध नहीं किया पूरे महिलाओं के ऊपर। लगातार एक दिन के अंदर 4 केस आ चुके हैं आज। Very strong words from you, Dr. Kaushal Pawar. Dr. Suraj Yangde, thank you so much for your time to both of you. Please do subscribe to the Prince YouTube channel. We always have lots of interesting videos and stories for you. Thank you both very much. Thank you so much. Thank you, Dr.